today's topic is what? Inverse trigonometric function, na? Hello? Yes, sir. Trigonometric functions, you know about trigonometric functions? What are the trigonometric functions? Tell me. Sine, cos, tan, cot, cosec, sec. Six trigonometric functions we know from previous class. Okay, na? So trigonometric functions is very, very important for all the topics of the mathematics of 12th class. Trigonometric functions, all the formulas of trigonometric functions also, and trigonometric ratios that are, all of you are studied in the class 10th. Trigonometric ratios means what? What? Sine equals to what? Trigonometric ratios? Tell me, anyone? Trigonometric ratios is very, very important also. Trigonometric ratios, trigonometric functions, and in the 11th class you have already also studied about sine 90 minus theta equals to what, sine pi minus theta equals to what, sine 270 minus theta equals to what, sine 2 pi minus theta equals to, sine minus theta equals to, cos minus theta equals to, you know. Trigonometric functions is very, very important for also integration, differentiation. In all the topics you will require the inverse trigonometric functions and also trigonometric functions. The base of trigonometric functions is very, very important for the study of higher mathematics. Very, very important. So tell me, anyone, you know what is trigonometric ratios? Means sine equals to what? Generally we are using ratios, that is you have studied in the 10th class. Trigonometric ratio, what? Sine equals to what? Perpendicular by hypotenuse. This ratios of sides of triangle. First of all we are defining trigonometric ratios, but in the 11th class we have defined trigonometric functions. Sin x, cos x, where x are x, sin x means x. What is x? X is angle in radian measure, and also we know all the radian measure having a 1 correspondence to real number, that is sin x. X may be any real number. So here just our topic is what? Inverse trigonometric functions. For that you must know all the basic formulas of trigonometric functions. How can we convert, how can we find the value of sine 480, 330, etc. ओके, एंगल के फॉर्म में दिया रहता है ना, साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा. सो एनीवन टेल मी, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? साइन पाई माइनस थीटा, you know? Hello? Because sin theta. So all of you just see one table, very, very important idea. How can we find the value of functions? है ना? You know our this frame. What is the frame? Here theta equals to 0. Here theta equals to pi by 2. Here theta equals to pi. This theta equals to what? 3 pi by 2. Also this is theta equals to, we can write what? 2 pi. 2 pi in the sense one rotation completed 2 pi. These are the angles. So here you know all are positive. All positive. Here positive what? Sine and cosec. Here tan and cot. Here cos and sec. You know this table? ये क्या होता है? यहाँ पर all the trigonometric functions having positive value. Here sine and cosec positive. Okay, these two positive and remaining are negatives. Here these two positive and remaining are negatives. Here these two positive and remaining are negatives. This portion having pi by 2 angle.
this portion having also pi by 2 angle, that is acute angle. Only this portion having maximum pi by 2 angles, and इसके बीच में जितने सारे एंगल होंगे वो 0 से 90 के बीच में होता है, ये इन सब पार्ट में. नाउ सपोज साइन पाई प्लस थीटा, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल. Acute angle means the value of theta is from 0 to pi by 2. Then what is the value of this? How can you write from this? Because this diagram is very very important for finding sin pi plus theta equals to, what will be the value? Tell me anyone. Sin pi plus theta, pi means what? यहाँ से यहाँ तक एंगल आया, ये एंगल पाई हो गया, and pi plus theta, theta lies between 0 to pi by 2. Minus sin theta. Minus sin theta, because pi plus theta, where theta lies between 0 to pi by 2, that is this angle will lie in this portion, third quadrant, because यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, फिर इसके बीच में रहेगा वैल्यू, ये वैल्यू, क्योंकि ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक है, नॉट पाई बाई 2. जैसे एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं आना है, इतने जगह पे आना है, तो इस जगह पे साइन नेगेटिव होता है, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव, सो साइन इज हियर नेगेटिव, सो ये नेगेटिव होता है. और क्या होता है, कहां पर चेंजेस होता है? चेंजेस मीन्स व्हाट? साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, जैसे टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में. दीज आर द चेंजेस. चेंजेस कहाँ कहाँ होता है? चेंजेस होता है यहाँ पर, चेंजेस होता है यहाँ पर, इस लाइन में नो चेंजेस, मीन्स पाई प्लस माइनस में चेंज नहीं होता है. ओके, एंड पाई बाई 2 90 प्लस माइनस में चेंजेस है, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस में चेंजेस है, पाई प्लस माइनस में नो चेंजेस. ओके, so tell me sin 2 pi minus theta equals to what? Sin 2 pi minus theta equals to, where theta lies between this, because this diagram is very very important. Today we will find the value of inverse function. So for that it is very very important. So see, sin 2 pi minus theta equals to what? Tell me anyone. Sin 2 pi minus theta. Minus sin theta. Minus sin theta, because here sin is negative and 2 pi minus, that is यहाँ पर होगा वैल्यू, तो माइनस sin theta. ओके, और अगर यहाँ प्लस लिया जाए तो ऊपर चला जाएगा, तो फिर से रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ना, इसका यूज करना है. चेंजेस किस में होता है? अगर ये लिया जाए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आएगा इसकी? हेलो, कोई भी बताओ. 90 प्लस थीटा, इस लाइन पे चेंज होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा मीन्स कॉस हो जाएगा. पाई प्लस माइनस 2, पाई प्लस माइनस में नो चेंजेस, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट. बट चेंजेस मीन्स साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टेन टू कॉट, कॉट टू टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक. ये these are the changes, और these changes will be with pi by 2 and 3 pi by 2. So here sin pi by 2 plus theta, that means here यहाँ पर होना है, sin is positive here, so इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बट चेंज हो जाएगा, cos theta. क्लियर है? दिस इज इक्वल्स टू cos theta. चेंज होना है, पॉजिटिव होना है, बिकॉज साइन हियर पॉजिटिव. So remember this diagram, very very important diagram. Okay, now we have already studied about invertible function.
Okay, now we will define inverse trigonometric function. That is, when a function is invertible, just in the previous chapter, first chapter में discuss किया ना, when you say that a function is invertible, tell me. Hello. When a function is invertible, fx is invertible. When we say that fx is invertible, hello, anyone tell me, when we say that function is invertible, invertible function, inverse exists, for existence of inverse of a function, what is the requirement? क्या रिक्वायरमेंट होता है? इनवर्स इन्वर्टिबल पढ़ के तो आए हैं, कोई तो एक जन बता दो कितना टाइम लगता है. हेलो, इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स फॉर इनवर्स एग्जिस्ट फंक्शन शुड बी व्हाट? हेलो, for inverse exist of a function, what is the requirement? Function should be what? Tell me. कोई तो बोलो. हेलो, कि सब गायब हो गए फिर से. हेलो, हेलो, हेलो सृष्टि. हेलो, यस सर. क्यों तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या पूछ रहा हूं मैं? फंक्शन इज इन्वर्टिबल मीन्स व्हाट? फॉर इनवर्स एग्जिस्ट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? If a function is from x to y, then there should be a function that is from y to x. रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शन इज इन्वर्टिबल. व्हेन वी से दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, वन वन अंटू होने से इन्वर्ट एग्जिस्ट करता है. ये पता है कि नहीं? ये भूल गए सब? फर्स्ट चैप्टर अभी छोड़ा नहीं क्या? भूल गए सब? फंक्शन इज इन्वर्टिबल, दैट इज वन वन अंटू होना चाहिए, तब फंक्शन इन्वर्टिबल होता है. और अंटू मीन्स व्हाट? Domain, for each element of domain there exists an element in for each element of codomain there exists an element in domain such that fx equal to y. One and onto is the requirement for inverse existence. So here just see sine function, cosine function, tangent function, cotangent function. You can see in your book. First of all, साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके डोमेन कोडोमेन लिखा हुआ है, देन इनवर्स डिफाइन करना है. ओके, सो यू नो साइन एंड कोसाइन. साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1. इनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 होता है. ओके, सो एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली. For this chapter, only domain कोडोमेन पता होना चाहिए, इतना याद रखो, बिकॉज डीपली स्टडी करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. सिंपल सा चीज तो में ही परेशान हो जाते हो सब लोग. सो यहाँ पर डोमेन कोडोमेन पता होना चाहिए. साइन का है वो इनवर्स. सो
we are main concerning with inverse trigonometric function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कोडोमेन क्या होता है ये पता होना चाहिए बस. ओके, सो फंक्शन साइन फंक्शन, यू नो, साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स. व्हाट इज एक्स? एक्स इज इन रेडियन मेजर. रेडियन मेजर भी करेंगे तो एंगल मेजरमेंट भी आ जाता है. सो साइन एक्स दैट इज फंक्शन. अगर साइन एक्स लिया, फंक्शन क्या लिया? साइन एक्स लिया, दैट इज, यही तो एफ एक्स है और यही तो वाई है. साइन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है. एक्स इन रेडियन मेजर. जनरली कुछ नहीं लिखा है साइन एक्स में से रेडियन मेजर. एंगल्स में लिखा है तो डिग्री में लिखा हुआ. ओके, इसको कन्वर्शन होता है. तो साइन एक्स लिखा मीन्स एक्स कहाँ का एलिमेंट है? यहाँ का. सो रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू रियल नंबर, सो मे बी एनी रियल नंबर. सो ये जो साइन है कोसाइन का डोमेन होता है, ये रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स. दिस इज द रेंज. बिकॉज ये होता है ना, ये डोमेन है और ये रेंज लिख दिया. साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और बाकी इसके बीच में होता है. ओके, सो साइन कॉस दोनों के लिए होता है. नाउ tan के लिए डेफिनेशन देना है. सो tan किस वैल्यू पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है? जस्ट टेल मी. tan ऑफ व्हाट? इन्फिनिटी. tan इन्फिनिटी कहां होता है? tan की वैल्यू इन्फिनिटी कहां आता है? टेबल में. tan ये टेबल में लिखा हुआ है. यू कैन सी कोसाइन cos 90 आल्सो यही होगा यहां पर भी. हेलो, tan 90 की वैल्यू क्या होता है? टेल मी. tan 90 Not defined. tan 90 नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट ना. दैट्स व्हाई tan 90 मींस व्हाट? tan 90 का भी है tan 3/2 10 की जो वैल्यू होता है ना, जो डायग्राम होता है, 90 मींस दिस, 90 मींस दिस. यहां पर π/2, यहां पर 10 इनफाइनाइट होता है. 10 इज ए पीरियडिक फंक्शन. पीरियड टू ओनली पाई होता है 10 का और कॉट का. सो यहाँ इन्फिनिटी होता है, यहाँ भी इन्फिनिटी होता है, यहाँ 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 इन्फिनिटी. दिस इज ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन. ये π/2 का ऑड मल्टीपल. 1 मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 5 मल्टीपल है, 7 मल्टीपल है. दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होने से 10 की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. सो 10 में से कौन सी वैल्यू को हटा दिया? बिकॉज इसके डोमेन में वो एलिमेंट है जहां इन्फिनिटी आएगा उसको नहीं रखेंगे. डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर में से वो सब रियल नंबर हटा दिए. कौन सा? जो π/2 का ऑड मल्टीपल, n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स है. दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ऑफ 10. 10 ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मींस व्हाट? इन्फिनिटी. सो उस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया ना, उस वैल्यू को नहीं लेना है. क्लियर है? यहां कॉट में क्या होता है? कॉट इज इक्वल टू व्हाट? कोसाइन बाई साइन. डिनोमिनेटर हैविंग साइन. साइन ऑफ पाई मल्टीपल में साइन की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है. sin pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi, sin 5pi, sin 6pi, all are zeros. So, cot means cos by sin. Sin नीचे, sin की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. So,
n के मल्टीपल वाले वैल्यू को डोमेन से हटा दिया, तब जाके फंक्शन डिफाइन हुआ। सो साइन का 10 का, दीज आर द फंक्शंस, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये सभी फंक्शन का डोमेन ये सब है, और कोडोमेन रेंज इधर लिख रहे हैं। ओके, इसका रेंज ये है, इसका रेंज ये है, ये 10 का रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है, कॉट का सेट ऑफ रियल नंबर है, सेक मीन्स व्हाट, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस मीन्स कॉस नीचे है, कॉस में भी ये होता है, वही तो 10 के लिए जो होता है वही है, कॉस में क्या होना है, सेक मीन्स 1 बाई कॉस, डिनोमिनेटर हैविंग कॉस, कॉस इज नॉट इक्वल टू, क्या नहीं होना चाहिए, कॉस की वैल्यू 0 नहीं होना है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, 90 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ 90, हर जगह 0 होता है कॉस 90 की वैल्यू। सो यहां से भी वही चीज को हटा दिए, वही है 10 मीन्स साइन बाई कॉस, कॉट मीन्स कॉस बाई साइन, सो कॉस वाला हटा है, यहाँ साइन वाला हटा दिया, तो ये सब डोमेन, तो दीज आर द डोमेन, मीन्स इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। ओके, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दीज वैल्यूज, सो दीज आर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करना है, सो रेंज और डोमेन क्या होगा उसका वो देखना है। ओके, सो सी हियर, दीज आर द डोमेन फॉर 6 फंक्शंस, रेंज 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 रेंज, इसका रेंज जो होता है आर सेट ऑफ रियल नंबर, इन दोनों का भी सेट ऑफ रियल नंबर रहता है, बट इनमें से ओपन पार्ट को हटाते हैं, ये यू कैन सी इट्स ग्राफ, बुक में ग्राफ दिया हुआ है, ये साइन कोसाइन कॉट का ग्राफ से भी क्लियर हो जाता है कि ये सब इनका रेंज है। सो वी नो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, इस y के अंदर अगर इसको हम क्या ले लें, रेंज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनटू फंक्शन हो जाएगा। एनी फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है, ऑल दिस 6 फंक्शंस आर डिफाइंड from here to here, these are the domain, these are the range. If we consider only range वाले पोर्शन को यूज करेंगे, सो रेंज अगर यूज करेंगे तो रेंज के लिए तो वैल्यू यहां मिलता है, बिकॉज इस टाइप का होता है, ये तो पूरा कोडोमेन है, बट दिस इज आर द रेंज टू दिस लेने से क्या हो जाता है, ऑनटू फंक्शन हो जाता है, बिकॉज फॉर एनी एलिमेंट ऑफ रेंज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन x such that fx equal to y onto, because 1 on onto is the requirement for defining its inverse function। जब fx to y होता है और ये 1 on onto, then we can define f inverse from y to x, तब डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको 1 on onto होना है, तो 1 on onto होने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1 on भी होना है, onto भी होना है, रेंज तो ले लिए और इधर ये डोमेन है, 1 मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज, बट ट्रिग्नोमेट्रिक, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यू नो sin 0 इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी, sin 0 इक्वल्स टू व्हाट, एनीवन? देखो इसको अच्छे से समझो, ये समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल रहेगा, सिंपल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे ये बना है। ओके, सो sin 0 इक्वल्स टू व्हाट, एनीवन? 0। ओके, अब देखो ये है डोमेन, ये है रेंज, यहां 0 इसमें है, वही तो है फंक्शन की वैल्यू, तो रेंज का है। अब sin पाई की वैल्यू क्या होता है, 0, बट 0 एंड पाई इक्वल नहीं है ना, बट इमेज तो इक्वल है, सो दिस इज नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं है, बिकॉज ये जो साइन का जो डोमेन है, सेट ऑफ रियल नंबर, एनी नंबर कैन बी टेकन, मीन्स पाई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ओके, 2 पाई भी, 3 पाई, 4 पाई एटसेट्रा, सब कुछ वैल्यू हो सकता है। बस ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, 0 लाने के लिए साइन के सामने एंगल कौन सा रखना है, इनफाइनाइट एंगल्स आर देयर, सो साइन ऑफ दैट इज इक्वल्स टू 0, सो इधर डिस्टिंक्ट रहेगा, बट 1 1 नहीं हो रहा है, ये रेंज है, ओके, यहां से यहां एलिमेंट मिल जाएगा, बट ये 1 1 नहीं हो रहा है, 1 1 होना है तो यहां रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा,
या ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि सिंगल टाइम्स जो वैल्यू रहता है उसी को यूज करना है। क्लियर? बिकॉज यहां पर जो सेट ऑफ रियल नंबर है देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, और इस डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन कैसे करना है? जैसे जीरो मिलना है, जीरो जीरो के लिए मिलता है, बस ओनली जीरो रहे, पाई ना रहेगा उसमें, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट इंटरवल्स, इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज है, उसके लिए जीरो आ सकता है, बट केवल जीरो वाले पोर्शन को रखो। तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन डालते हैं ये -π/2 टू π/2, an interval having also infinite number. Big infinite numbers are what? Set of real numbers, that is -infinity to +infinity. Now -π/2 to π/2, -π/2 से π/2 के बीच में जितने सारे वैल्यूज है, एंड आल्सो इंक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2, इस r की जगह पर अगर ये ले दिस टू दिस, यहां से यहां पर डिफाइन करेंगे, मीन्स ये इस डोमेन को हम r ना रख के इसको रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। इधर तो रेंज लिखे, पहले से रेंज लिखा हुआ है, सो दिस इज रेंज, और यहां पर जो इनफाइनाइट इंटरवल मिल रहा है उनमें से रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कि ये वाला इंटरवल सिंगल इंटरवल लेंगे, मीन्स 1 1 का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देन वी कैन डिफाइन इनवर्स। सो ये इंटरवल, बट साइन जो है 2π के पीरियडिक फंक्शन है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंटरवल होंगे, ढेर सारे इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल्स हो सकता है, बट बेसिक वाला जो इंटरवल है इसको यहां पर यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं किस पे? डोमेन पे। साइन फंक्शन के डेफिनेशन में सभी में इस डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, सिंगल इंटरवल लेते हैं जिससे 1 1 सेटिस्फाई, देन वी कैन डिफाइन इनवर्स फंक्शन, बिकॉज इधर रेंज है, इधर 1 1 के लिए ये सेटिस्फेक्शन यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, और यहां तो रेंज है, सो 1 1 2 हो जाता है, देन वी कैन डिफाइन इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन इधर से इधर डिफाइन होगा। सो इनवर्स फंक्शन, अगर साइन का इनवर्स फंक्शन, जैसे एफ फंक्शन होता है, जैसे ये f(x/y) होता है तो उल्टा होता है, y से x होता है, f इनवर्स होता है, तो साइन फंक्शन ऐसा डिफाइन है, तो साइन इनवर्स फंक्शन इस टाइप से डिफाइन होगा। सो you have to remember always this table, okay? Which table? For domain and range of inverse trigonometric function. So inverse trigonometric function, sine inverse, always ये याद रखना है, ओके? डोमेन एंड रेंज, फंक्शन, and here domain, here range. You can see your book, बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होना है? फंक्शन शुड बी डिफाइंड, डोमेन हो जाएगा ये -1 to 1, रेंज क्या होना है? ये, इस पर रेस्ट्रिक्ट किया। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, -π/2 π/2। ये जो टेबल है बुक में भी गिवन है, इस टेबल को अच्छे से याद रखना है, ओके? साइन इनवर्स का डोमेन ये है और रेंज ये है। कॉस इनवर्स आल्सो -1 1 to 0 to π, इसको इस पे रेस्ट्रिक्ट किया है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, एंड देन सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स लिखता हूं, साइन देन कोसेक, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, tan इनवर्स एंड cot इनवर्स। सब लोग बुक लेके पढ़ने बैठे हैं तो बताओ मेरे को, हेलो टेल मी,
यहां पर क्या लिखो, कोसेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स को भी रेस्ट्रिक्ट किया है ना यहां पर, ये तो इधर तो वैल्यू था पहले से। टेबल, एनीवन सीरियसली पढ़ने बैठे होगे ना? सो सेक कोसेक इनवर्स का ये यहां और यहां बताओ, डोमेन एंड रेंज। हेलो, बुक को भी तो पढ़ना है डिटेल में, बुक में ग्राफ दिया है, बहुत सारा डिस्कशन दिया है, यू कैन रीड इट, बट मेन थिंग समझ लो, ये टेबल पता होना चाहिए। ओके, सो साइन इनवर्स, दिस कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स। टेल मी, कोई तो बताओ एक जन, कोसेक इनवर्स का क्या होना है? हेलो, R minus 1. यहां पर लिखा था ना पहले, वही चीज है ना, r माइनस जो इस साइड में लिखा था वो ना, व्हाट r माइनस व्हाट, ये इंटरवल ना, इसमें भी वही होगा। और 10 में क्या होना है? 10 में सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो यहां से उठा दिया, कहां, ये जो साइन कॉस सेट सबका रेंज तो इस साइड में लिखा था, वही रेंज को ही लिख दिया। नाउ मेन इज वो जो रेंज हमने शिफ्ट किया है, जो चेंज कर दिया रेंज, तो वो जो रेंज अभी बना है, पहले तो डोमेन था, वही तो रेंज बना, उसी में से ये साइन के लिए वो बनाया, कॉस के लिए वो बनाया, कोसेक के लिए क्या होना है? कोसेक में 1 बाई साइन, साइन का वो पोर्शन जिसमें जीरो आता है उसको हटा देना है। किसमें जीरो आता है? साइन में। हेलो, ये साइन का है, कोसेक बनाना है, कोसेक में व्हाट, 1 बाई साइन, साइन में वो पोर्शन इसमें से जहां पर जीरो होता है वैल्यू, उसको हटाना है। क्या लिखूं इसमें, क्या हटना है? जीरो, जीरो हटना है ना? हेलो, ये साइन है, ये Yes, कोसेक है, इनवर्स है ना, नीचे साइन आ रहा है, जीरो नहीं होना चाहिए वैल्यू। सो क्या होना चाहिए? इसमें से जीरो हट जाएगा, माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो, ओनली सिंगल जीरो इसमें से हटा दिया। सिमिलरली सेक 1 बाई कॉस, कॉस 90, कॉस 90 में जीरो होता है, सो 90 को हटा देना है इसमें से। सो जीरो पाई माइनस पाई बाई टू, ये सब मीनिंग क्या हो रहा है? साइन इनवर्स हैविंग दिस इज रेंज, और ये जो रेंज है ये सिंपल फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड, मेन थिंग इज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसके अलावा भी दोनों साइड में इनफाइनाइटली इंटरवल आर देयर, वो इंटरवल नहीं रहे, बेसिक इंटरवल इसको ले रहे, और दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। रेंज, रेंज के लिए जो ब्रांच है, देयर आर इनफाइनाइट ब्रांच, मतलब इनफाइनाइट इंटरवल, उनमें से एक को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाया। ब्रांच बहुत सारा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा है? ये सब जो लिखा हुआ है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसका? इनवर्स फंक्शन का। रेंज है वो भी, तो क्या बोलना पड़ेगा? रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of the cosec inverse function is pi by 2 minus pi by 2 minus 0. So sin inverse की वैल्यू, cos inverse की वैल्यू, इन सब की वैल्यू फाइंड करना है, और वो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। जैसे sec इनवर्स का आएगा तो pi by 2 नहीं हो सकता, उसको हटा दिया, और बाकी 0 से पाई के बीच में होना है। cosec इनवर्स का 0 नहीं होना है, बाकी इस इंटरवल के अंदर होना है, बाहर होगा इंटरवल के तो नहीं होगा। So range of the principal value branch of inverse trigonometric functions are this, और ये सब को याद रखना है। मेन थिंग इज रेंज को याद रखना है फॉर फाइंडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, 10 के लिए क्या होना है? 10 के लिए साइन और कोसाइन, ये जो होता है इन दोनों का वही सेम होता है, बट ओपन इंटरवल होता है, उसमें पाई माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडिंग नहीं रहेगा। यू नो 10 में पाई बाई टू लेंगे तो इन्फिनिटी आता है, सो उसको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी पार्ट में होगा।
सो क्या वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों होगा बट ओपन इंटरवल में होगा, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू और ये है 0 पाई. सो दीज आर द what? These are the range of principal value branch of inverse trigonometric function. So now we will find the value of inverse trigonometric function. Okay, तो inverse trigonometric function फाइंड करने के लिए ना सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरा एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, हेलो, एनीवन रीड इट? एक बार रीड करो, क्या लिखा है? हेलो, हेलो, क्वेश्चन इज व्हाट? हेलो, एनीवन रीड इट? हेलो, Helen, read it. Question. Principal value of sine minus 1 bracket minus 1 by 2. देखो तुम रीड नहीं कर पाए अच्छे से. हेलो, सृष्टि रीड करो. हेलो. Find the principal value of sine inverse bracket minus 1 by 2. ओके, एक जन और से रीड कराता हूँ. ओके, आज कौन है? शुभम भी है. शुभम, हेलो. शुभम. छाया, हेलो. रुद्र, हेलो. देखो सब चालू करके इधर उधर हो गए सब हैं. साइन माइनस 1 रीड किया था, ऐसा नहीं. रीडिंग कैसे करते हैं? साइन इनवर्स. अब लिखने का टेक्निक भी है, देखो कहीं कहीं आर्क लिखा था, आर्क साइन. ये जो आर्क साइन लिखा है ना, कैलकुलेटर में रहता है. आर्क मतलब साइन इनवर्स है. ओके, इसका मीनिंग होता है साइन इनवर्स. साइन इनवर्स एक्स, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग बोथ आर डिफरेंट. इनवर्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज साइन इनवर्स एक्स. ये अलग है और ये अलग है. इसका मीनिंग क्या है? दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स और दिस इज नॉट. साइन इनवर्स इटसेल्फ हैविंग स्पेशल नोटेशन. इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स को गलती से ऐसा नहीं लिख देना है. क्लियर है? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ. ओके, माइनस हाफ का साइन इनवर्स फाइंड करना है. सो एनी टाइप्स सिंपल टाइप के क्वेश्चन है पूरे, है ना. ऑल क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. जस्ट व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसी टाइप से हर क्वेश्चन में लिखना है. ओके, सो लेट whatever be the value sin inverse minus half, we want to find the value of sin inverse minus half. so जिसका भी वैल्यू निकालना है उसको y के इक्वल सपोज कर लेना है. ओके, सो लेट sin inverse minus half equals to y. जो वैल्यू निकालना है उसको इक्वल्स टू y सपोज कर लेना है. ओके, जैसे ये होता है ना एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स. इस टाइप से लिखते हैं. इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो इफ साइन इनवर्स माइनस ऑफ एग्जिस्ट, सो लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस. ओके, सो यू कैन आल्सो राइट हियर एक्स. नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है कभी, वाई क्या है एक्स क्या है, बिकॉज यहां पर ये साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स ऑफ दिस माइनस ऑफ, ये माइनस ऑफ कहां का वैल्यू है? यहां का. तो साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल्स टू जो वैल्यू आने वाला है
वो क्या आने वाला है, एंगल आने वाला है। सो y की वैल्यू एंगल। सो यहाँ पर हम लोग क्या नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर जनरली x यूज नहीं करते, बिकॉज जनरली वी आर राइटिंग लाइक दिस sin x fx इक्वल्स टू। सो इसका इनवर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, y से। So sin, let us suppose that this, then inverse exists, so we can write it what, minus half equals to sin y, या तो ऐसे लिख लेना है sin y equals to minus half। ओके, अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू। sin y इक्वल्स टू, y इज व्हाट, y जो है वो एंगल है। सो y का वैल्यू अगर ऐसा मिल जाए हमको, क्या करते हैं, sin x इक्वल्स टू sin पाई बाई 4, तो क्या लिख देते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 4। बट पाई बाई 4 सिंगल आंसर नहीं होता, इनफाइनाइट आंसर होता है, बट प्रिंसिपल वैल्यू में ओनली पाई बाई 4 हो सकता है, बिकॉज उस रेंज में होना चाहिए। सो यहां पर सॉल्व करने का टेक्निक ये है कि and for any questions, ये जो दिया है this is equal to y, then we can write sin inverse of this equal to this, so we can write sin of y equals to this, मतलब sin y equal to this। now sin of this equals to minus half, एंगल के फॉर्म में लिखना है अभी। so minus half sin, किसका वैल्यू माइनस हाफ होता है, प्लस हाफ होता है sin, टेल मी, हेलो बताओ, sin पाई बाई 6 30 डिग्री। नाउ sin y इक्वल्स टू माइनस साइन को हटाना है। सो वी नो sin माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस के अंदर का ये जो माइनस है या तो बाहर भी आ जाता है ना, मतलब ये होता है कि नहीं, यू नो sin माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो जब sin y इक्वल्स टू साइन ऑफ समथिंग लिखना है तो माइनस को हटाना है, तो माइनस को अंदर ले सकते हैं यहां पर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, सो वी गेट व्हाट, साइन ऑफ y इक्वल्स टू दिस, एंड सी दिस वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू उस रेंज में है क्या, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। सो टेल मी एनीवन, माइनस पाई बाई 6 उस इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं, हेलो, इस इंटरवल के अंदर है माइनस पाई बाई 6, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये प्लस पाई बाई 2 है, यहां से यहां तक है, यहां 0 है या पाई बाई 2 है, ये दिस इज पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2, ये यहां पर 0 है। सो माइनस पाई बाई 6 कहां पर होगा, अगर न्यूमेरिकली वैल्यू देखे तो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 ग्रेटर और पाई बाई 6 ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, पाई बाई 2 है कि पाई बाई 6 है, पाई बाई 2 न्यूमेरिकली देखे तो पाई बाई 2 ग्रेटर है, तो पाई बाई 6 भी यही कहीं होगा ना, इंटरवल के अंदर ही तो है ना। सो माइनस पाई बाई 6 कहां का एलिमेंट होना चाहिए, इसके अंदर का, इनफाइनाइट वैल्यू होगा, इसको सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू इनफाइनाइट होगा, बट वो वैल्यू लेना है जो इस प्रिंसिपल रेंज में हो। सो हियर माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू, यहां लिखना पड़ेगा, अभी क्या लिखोगे, वी नो दैट दिस इज मेन लाइन, वी नो दैट द range of the principal value branch of sin inverse is minus pi by 2, बिकॉज यहां तक तो हमने कर लिया, अब क्या करना है, साइन इनवर्स का ये जो वैल्यू y की जो वैल्यू हम लिखने वाले हैं वो किसके अंदर होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। सो y की वैल्यू लिखने वाले हैं अभी इसको,
अगर ये उसमें है तो. So just you have to write, we know that the range of the principal value branch of sin inverse is this. Yeah, we know that. And this value belongs to this interval. Then we can write y equals to, that means this equals to minus pi by 6. And minus pi by 6 belongs to this interval. ये जो वैल्यू है वो उस इंटरवल में होना चाहिए. एंड माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. therefore principal value of sin inverse minus half is equals to minus pi by 6. ये है प्रोसेस. कोई भी वैल्यू लिख लेना है और ऐसे करके सेटिंग कर लेना है. फिर ये वाला वैल्यू उस इंटरवल में होना है. अगर इंटरवल में है तो y के जगह पे मतलब इस जगह पे मतलब इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6. सो आंसर इज माइनस पाई बाई 6. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में तो टेक क्वेश्चन सेकेंड. इसका क्या आंसर आएगा? टेल मी फर्स्ट. इसमें कुछ लिखना नहीं है, फटाफट बता दो. इसमें भी तो वही लिखा है, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, √3/2. सो क्या करना है? लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू y. देन cos y इक्वल्स टू √3/2. एंड √3/2 कॉस की वैल्यू कितना में होता है? हेलो, यहां तो माइनस वाला दिक्कत नहीं है. किसमें होगा? cos y इक्वल्स टू √3/2. टेल मी, जल्दी करो. हेलो, पाई बाई 6 ना, पाई बाई 6. Now this pi by 6 must belong to the principal value range of cos inverse. Cos inverse का principal value range देखो 0 to pi है. क्या लिखना पड़ेगा? We know that the range of the principal value branch of cos inverse is what? 0 to pi. वो देखो cos inverse में का 0 to pi है. So ये पाई बाई 6 0 to पाई के बीच में है कि नहीं? यस, पाई से तो लेस है ना, ये ग्रेटर देन 0 भी है. आल्सो पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 पाई. ये लिखने के बाद फिर आंसर लिखना है, तब जाके ये किस में होगा? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है. सो y कैन बी रिटन एज पाई बाई 6 फॉर द प्रिंसिपल. इस लाइन के बाद लिखना है देयरफॉर principal value of this, that is this is cos inverse √3/2 is equals to pi by 6. So pi by 6 is the answer. Okay, now take question third. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होना है? टेल मी, डायरेक्ट बता दो, बस हो जाएगा. यहां पर क्या लिखना है? क्वेश्चन थर्ड, cosec इनवर्स 2. सो दिस इज 2 cosec इनवर्स. Then cosec y equals to 2. cosec y equals to 2 क्या वैल्यू होना चाहिए? 2 मीन्स 1/2. cosec मीन्स 1 by sin. sin की वैल्यू 1/2 कब होता है? हेलो, क्या लिखे यहां पर?
Pi by 6. Pi by 6 means 30 degree. Sin 30 1 by 2. तो cosec 30 2. So cosec 30 pi by 6. ओके. सो cosec का फिर वही लिख देना पड़ेगा यहां पर cosec का. cosec का क्या होता है? cosec minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. 0 नहीं होना है. सो यहां भी pi by 6 है ना सर, बिकॉज pi by 6 बिलोंग कर जाएगा ना इसको. माइनस pi by 2 to pi by 2 minus 0. इसमें है 0 नहीं है, ये तो 0 नहीं है. ऊपर से क्या है? इसी के अंदर है pi by 6. सो देयरफॉर cosec inverse 2 equals to pi by 6. Okay, ये y equals to, यहाँ से y equals to means this is equals to this. Principal value. Okay, principal value. Principal value. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन का सेटिंग कैसे होगा? tan इनवर्स माइनस रूट 3. ओके, अब tan इनवर्स माइनस रूट 3 इसमें थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा. फिर क्या लिखना है? लेट tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल्स टू y. tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल्स टू y. देन क्या होना है? tan y इक्वल्स टू माइनस रूट 3 minus root 3. So tan minus root 3. What is the angle for tan for getting root 3? क्या होगा? root 3 कब है? tan की किसकी वैल्यू होती है root 3? 60 means pi by 3. tan of pi by 3. इसको क्या करना पड़ेगा? tan of माइनस को हटाना है ना. सो tan में भी माइनस अंदर जाता है, यू नो, एज जस्ट लाइक साइन. tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ये तो होता है. सो यहां पर भी साइन के जैसा अंदर चला जाएगा ये माइनस पाई बाई 3. ओके, सो यहां भी आंसर सिंपल हो गया. अब tan के लिए लिखना है, सो यू कैन राइट लाइक दिस, tan y इक्वल्स टू दिस. फिर यहां tan के लिए लिख देना है. tan का क्या होता है? ये टेबल हमेशा याद रहना चाहिए, इसीलिए तो बोल रहा था. tan इनवर्स इज माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ये रेंज है. इस इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल में. सो हियर माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू दिस. करता है कि नहीं बिलोंग यहां पर? माइनस पाई बाई 3, हेलो, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, इसके बीच में तो होगा ना, बस पाई बाई 3 है, यहीं पर होगा, बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में. प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ tan इनवर्स इज दिस. देयरफॉर tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल्स टू व्हाट? माइनस पाई बाई 3. प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, सो दिस इज आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन बना, अभी फिफ्थ क्वेश्चन. cos inverse minus half. Okay, so anyone can guess क्या होना है इसके लिए? पूरा मिटा देता हूं अभी, है ना, बिकॉज दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा याद रखना है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना है. ओके, सो सी, ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, टाइम कंप्लीट हो जाएगा अभी, है ना. सो 5, क्वेश्चन 5, व्हाट इज द वैल्यू cos इनवर्स माइनस हाफ. सो लेट cos इनवर्स माइनस हाफ इक्वल्स टू y implies cos y equals to minus half. now minus cos half वैल्यू होता है cos का, तब, हेलो,
क्या लिखा जाए? Cos of what? Tell me anyone. Hello. क्या वैल्यू आना है? Cos of पाई बाई थ्री. Cos 60 1/2 1/2 होता है ना. पाई बाई थ्री cos 60 1/2 होता है. माइनस साइन में लिखा है हाफ cos 60. नाउ दिस माइनस साइन को हटाना है तब तो काम बनेगा ना. तो माइनस साइन को अभी अंदर थोड़ी ले सकते हैं. cos में तो होता नहीं है. cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? cos माइनस थीटा इक्वल टू टेल मी वेरी फास्ट. क्या होता है? cos theta. cos थीटा. अब तो बनेगा नहीं काम यहाँ पर. क्या करें इसके लिए? वो जो पहले एक डायग्राम बताया था उस डायग्राम का यूज करना है. ओके. सो इसको क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस, ये सब सेटिंग करके देखना है. बट हमको cos ही रखना है. सो पाई प्लस माइनस में देखना है. सो पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा. ठीक है. सो पाई माइनस, अब हमारे यहां थीटा की जगह पे ये है पाई माइनस थीटा. एक्यूरेट एंगल होना चाहिए. तो cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू थीटा अगर एक्यूरेट है तो क्या होता है? सेकंड में है, यहां पर है. यहां पर cos नेगेटिव है माइनस cos थीटा. थीटा एक्यूरेट है तो थीटा की जगह क्या है? पाई बाई 3 है. पाई बाई 3 है तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस cos पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3. सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. सो यहां से माइनस हट गया अभी. ओके. नाउ सॉल्व इट. क्या हो जाएगा इसको करेंगे तो? cos 2 पाई बाई 3. सो cos y इक्वल्स टू दिस. अब ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है कि नहीं वो देखना है. cos का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? 0 to पाई है. 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और नॉट? टेल मी. हेलो. कोई बोलो. ये इसको बिलोंग करता है? Yes, sir. ब्रांच ऑफ cos इनवर्स का क्या होता है? इज पाई 0 पाई एंड 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 पाई. बिलोंग तो करते ही है. पाई से तो लेस है ना ये. 2 पाई बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3 इज लेस देन 1. सो 2 पाई बाई 3 इज लेस देन पाई. सो इसी के अंदर है, बिलोंग करता है. देयरफॉर ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स. देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस हाफ इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस हाफ y की वैल्यू मतलब यही इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3. ओके. सो अभी क्लास टाइमिंग भी खत्म हो गया. ये क्वेश्चन बताओ. क्वेश्चन 6 का रिप्लाई दे दो कोई भी फटाक से. एकदम सिंपल है. जस्ट रिप्लाई करो. -π/4. बिकॉज इस तो 1 का पाई बाई 4 होता है और 10 में माइनस अंदर चला जाता है. माइनस पाई बाई 4 आल्सो बिलोंग्स टू 10 का इंटरवल कौन सा है? ये माइनस पाई बाई 4 इसमें है. सो माइनस पाई बाई 4 इज द आंसर. ओके. Okay, so just revise all the formulas of trigonometric function from 11th class. Very very important for solving integral differentiation this year for 12th mathematics. Okay, very very important formula. And so try to solve all these questions of this exercise. Okay, also. So meeting close कर रहा हूँ अभी है ना? Thank you, sir. Okay.